آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً پہلے حماس ہے. کچھ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں واٹس ایپ پر, میسنجر پر, تو یوزلی تو میں جوابات نہیں دیتا کہ انتقاماً خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے, مگر کچھ چیزوں کا جواب دینا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ شاید کچھ عقل آ جائے, کچھ ہوش آ جائے. اس پہ بات کریں گے. دوسرے, ابھی کرکٹ دیکھا, بہت بدمزہ ہوں, اس پہ کچھ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کوئی صاحب آگے تھے ایک عجیب بات کہہ کے چلے گئے. پھر MKM متحدہ پاکستان جو آج کل بڑے انٹرسٹنگ بیانات دے رہی ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے, تو سوچا کہ آج انہیں بھی زیر بحث لایا جائے, ان پر بھی کچھ گفتگو کی جائے. اور تیسرے, میرے پاس ایک خبر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بقا کو فنا ہے, تو پیپلز پارٹی سندھ میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ ڈائنگ پوزیشن میں ہے اور اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. پہلے کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اتفاق کی بات ہے, میں جس گھر میں ہوں اس وقت, میرا یہ نیفیو کا گھر ہے, اور اس کے سامنے جو اسٹریٹ ہے, گلی ہے, اس میں میرا پورا بچپن گزرا ہے. کرکٹ کھیلتے, گلی ڈنڈا کھیلتے, اور ایکسپریس آنکھ مچولی کھیلتے, اور جانے کیا کیا کھیلا میں نے. جو بچپن میں اس دور کے کھیل ہوا کرتے تھے سبھی کھیلے. تو کل کوئی شام کے ٹائم, شاید یہی ٹائم تھا, اس وقت 5:15 بج رہے ہیں یہاں, تو گھر میں جو خاتون کام کرتی ہیں, دروازے پہ نوک ہوئی, وہ گئیں, تو انہوں نے آ کے کہا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کھول دیں, ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے. تو اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی, UPS چل رہا تھا, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. بہرحال میرے نیفیو آئے, انہوں نے کوئی سوئچ آن کیا, بٹن لگایا, دبایا, مجھے نہیں پتا. بہرحال گلی میں روشنی ہو گئی اور چہل پہل. مجھے میرا پورا بچپن میری آنکھوں میں دوڑ گیا کہ گلی گلی کراچی سے لے کر سکھر تک, تو کم از کم شکارپور اراؤنڈ میں سب جگہ کرکٹ ہوتا ہے یہاں, اور بچوں کا ایک ہی شوق ہے. ابھی پتہ چلا کہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر میں دیکھ رہا تھا, اسپورٹس پر, PTV اسپورٹس پر, کہ ہمارے 2 کھلاڑی تو 139 پر آؤٹ تھے انڈیا کے مقابلے میں, احمد آباد میں, جہاں 1.25 لاکھ کا کراؤڈ, انڈینز کو, پاکستانیوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ملی. اور 157 پہ 7 آؤٹ ہو گئے, اور 191 پہ پوری ٹیم ماشاءاللہ سے گھر چلی گئی. اور ورلڈ کلاس بیٹسمین محترم جناب بابر اعظم صاحب نے جو شاٹ کھیلا وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا. اور باقی تو کیا ٹیم ہے, سب کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں ہی کہا گیا نا کہ یہ وہ بندوق ہے جس سے مالک بھی ڈرتا ہے اور سامنے والے بھی. تو ابھی انڈین شروع ہی ہوئے تھے کہ پہلے اوور میں ہی شاہین آفریدی صاحب نے 10 رن دے دیے ماشاءاللہ سے. ان کا ایوریج پہلے ہی اوور سے 10 پہ جا رہا ہے, 34 پہ ایک آؤٹ بھی ہو گیا ہے. تو میرے ایک سندھی دوست آ گئے, تو میں ذرا اپسیٹ بیٹھا تھا. میں نے ان سے کہا یار بہت بدمزہ ہوا ہوں, جبکہ میں نے تو کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا, کہ میں نے اس ٹیم کو کبھی جیتتے ہوئے نہیں دیکھا ٹی وی پر, میں نے نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں جیتی ہے کئی دفعہ, کیونکہ اچانک فلوک تو لگ جاتے ہیں نا. تو اس نے کہا یہ پاکستان کی ٹیم تھوڑی ہے, یہ جن کی ٹیم ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. اور پھر اس نے ہنس کے کمال جملہ کہا کہ یہ ٹیم بالکل ویسی ہے جیسے یہ ریاست چل رہی ہے, انہی کی ٹیم ہے, اسی خطے سے تعلق رکھتی ہے, جس طرح انہوں نے ملک چلایا ایسی یہ ٹیم چلا رہے. تو اتنے میں ایک اور صاحب آ گئے, انہوں نے کہا چھوڑیں یار, ان کے ہارنے پہ سندھ میں تو اسپیشلی کراچی سے لے کر اوباڑوں تک اور بلوچستان میں تو باقاعدہ خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس ٹیم پر متعصب ہونے کا الزام ہے, کہ اس میں 2 مخصوص صوبوں سے, ایک سے سب سے زیادہ, پھر دوسرے سے کم پڑ جاتے ہیں تو دوسروں سے لے لیتے ہیں, اور باقی کو انہوں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے. اور پھر ٹیم میں رفٹ کی بھی خبریں ہیں. پھر اسی دوران گفتگو پتہ چلا کہ جی شاداب, حارث اور شاہین آفریدی بابر اعظم کے خلاف ہیں, اور جو ابھی ایشیا کپ ہوا تھا اس میں انڈیا میں آپس میں لڑائی بھی ہوئی. تو بہرحال ان کی ساری گفتگو سن کے میں بہت بدمزہ ہوا, بہت ہی
दुख हुआ, अफसोस हुआ कि किसी एक एस्पेक्ट में यहाँ कोई यूनिटी, यहाँ कोई मेरिट, यहाँ कोई इंसाफ। फिर उस पर मुझे बहुत सी बातें याद आईं जो यहाँ ज़ेरे मौजू नहीं है, मौजूद बहस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ कि जी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब मैंने जितने भी प्रोग्राम किए अभी हमास के हवाले से सिर्फ मैं हिमायत करता हूँ, हमास की मुखालफत करता हूँ, उस पर इल्ज़ाम तराशी करता हूँ और यहूदियों की हिमायत करता हूँ क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ। देखिए जी, मैं आपको कोई जवाब दे नहीं हूँ। सबसे पहले तो इंसान, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब ने अपने ज़मीर के साथ रहना होता है और अपने ही ज़मीर के साथ रात को सोना होता है। ये मैं जानूँ, मेरा रब जाने कि मैं कितनी सच्चाई से बात करता हूँ, कितनी मिलावट करता हूँ। मगर आपके जो हालात हैं उस पर पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उस पर हम बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम यहूदियों की है। उनका साल का एवरेज 72 बुक्स है। और दुनिया में सबसे कम पढ़ने वाली कौम मुसलमानों की है। उनका साल में 6 मिनट पढ़ने का एवरेज है। साल में 6 मिनट। और हमारे डॉक्टर सईद साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी पीएचडी में से एक आंकड़ा सुनाता हूँ। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने हमारा एक सेंटेंस ठीक करके दिया। हमारी कौम पे एक इल्ज़ाम था कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जेल में है। डॉक्टर सईद साहब की रिसर्च बताती है दुनिया की सबसे ज़्यादा कौम, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो कौम बेगुनाह जेल में है वो हमारी कौम है। हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इस वजह से बोर्ड पर हमारा मुकदमा तक नहीं लगता है। ये 6 मिनट साल में पढ़ने की आदत हमको कहाँ ला के छोड़ गई, ये हम जानते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 8 साल से हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? सब लोग मुस्कुराने लगे। पिछले 8 साल से हर चीज़ हम वे करके देखने लगे, तराजुओं पे तौलने लगे, और हमारे नए तराजू का नाम होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक। हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले ज़माने के एतबार से परवरिश करना। तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना कुछ और होगा। आप जैसे ही फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज़ों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखे वहां पर एक लाइन 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है, और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं। जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। वो डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेजन है। यहूदियों से यहां एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पर हैं। वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेजन की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता है कि मोबाइल ने हमें एम्पावर कर दिया और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूं, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियां टूटने तक मारा गया है। पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस। तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में हैं जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए। और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो।
ये गूगल पे कब्जा ना करके सवेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं, सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं? एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में आपने ये वीडियो, आप बातें करते हैं जिहाद की और कि थूक दो तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। आप वो बेशरम लोग हैं, आई एम सॉरी, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, बल्कि मैं उसमें हम सभी शामिल हैं, कि अपने घर के सामने से कचरा नहीं उठा सकते हम, और ना हम में इतनी हिम्मत और इतनी सलाहियत और इतनी जुर्रत है कि वो कचरा उठवा सकते हो। बातें करते हैं जिहाद की, और किन के खिलाफ बातें करते हैं? जो पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, जो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम चलाते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बानी हैं। ये हमास जो है, ये इसराइल की बी टीम है, जो हर 2-4 साल के बाद हमला करती है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करवाती है, और इसराइल कुछ और इलाकों पर कब्जा कर लेता है। क्या हो रहा है इस वक्त कि मैं गाज़ा को खाली देखना चाहता हूँ, निकल जाओ। सब थूक लगा के रो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी पैर पड़ी हुई है, जाए ना, निकले ना। आप तो वो लोग हैं कि जॉर्डन उर्दन की हिफाजत के नाम पर 25,000 आपके लोगों ने, आपके घर के लोगों ने 25,000 फ़लस्तीनी मारे थे। मालूम कर लें तारीख से। आप उनकी हिमायत में रोते हैं, मेरा मुंह ना खुलवाइएगा। आप सिर्फ कलम के जिहादी हैं कि आप अब तो कीबोर्ड के जिहादी हैं। नारे मारने के अलावा आपको कोई काम नहीं आता। जो लोग अपना मुल्क, अपनी ज़मीन साफ ना रख सकते हो, वो कहते हैं ना कि जिस जगह पर, मेरे मुंह में मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, कि वो भी मट्टी साफ करके बैठता है। ये पूरा मुल्क आपका कचरे के ढेर पे रखा हुआ है टोटल। बातें करते हैं ग़ज़वे हिंद की, बातें करते हैं फ़लस्तीन की आज़ादी की। वो मैं एक सुन रहा था, वो लब्बैक का एक लीडर बेवकूफ़, आई एम सॉरी, कह रहा था 5 लाख दी साड़ी फौज हैगी, वो जान तो 15 लाख असी देंगे। मैं बंदे नहीं देंगे, आम की गुठलियां देने की बात कर रहे थे। जैसे ऐसे बोल रहा था वो, जैसे आम की गुठलियां देने की बात कर रहा है। तुम्हारे पास 15 लाख होते तो ये मुल्क तब्दील हो गया होता। तुम तो 5,000 भी बाहर निकलने को तैयार नहीं हो अपनी बच्चों की जिंदगियों के लिए। जहां इस मुल्क में बीमारी, बेरोजगारी, भूख से लेकर वो कौन सा अजाब है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तुम फ़लस्तीन 15 लाख भेजोगे? पहले अपने आप को तो दुरुस्त कर लो, अपने घरों को तो दुरुस्त कर लो। जो आधी छतें टूटी हुई हैं, बच्चे स्कूल जाने को मोहताज हैं। 2.25 करोड़ तो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि 90% बच्चे अभी स्कूल में, यहाँ शहरों के अलावा स्कूल नहीं जाते। तो देखें जनाब, नारे मारने से कुछ नहीं होता है। लोगों से, दुनिया से सीखें और तज्जिया सही करना, दुरुस्त करना, अंदाज़ा लगाना सीखें कि जनाब हर 2-4 साल के बाद हमला कर देते, 2-4 हज़ार फ़लस्तीनी मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, रुल जाते हैं। गुर्बत इंतहा से ज़्यादा है। जी एक पोस्ट लगाई हुई थी कि जी मस्जिद अक्सा के सराउंडिंग में कुछ ऐसे घर और दुकानें हैं कि जिनकी कीमत 100 मिलियन लगा दी है यहूदियों ने, मगर वो मुसलमान बेचते नहीं हैं कि हम मस्जिद अक्सा का एतराफ़ नहीं छोड़ेंगे। आपके मुल्क में होता या आपकी वहाँ हुकूमत होती तो आपके हुक्मरानों ने रातों रात गायब करवा दिया होता, रातों रात। अगर ये सच है कि 100 मिलियन की उनकी प्रॉपर्टी की कीमत लगा दी गई है और वो खाली नहीं करते, अपने गिरेबान में झांकें और अपने आप से पूछेंगे ये सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। मेरे पास ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं कि आपकी दोनों बड़ी पार्टियों के लीडरों ने लोगों के घर खरीदने के लिए बाकायदा धमकियाँ दी हैं, बाकायदा, और लोगों को हिरासा किया है। आप तो सब मुसलमान हैं आपस में। जाएं कराची क्लिफ्टन में पूछ लें, जाएं मॉडल टाउन लाहौर में और डिफेंस में पूछ लें, या जो कीमती घर है लाहौर में पूछ लें वो कौन ख़रीदना चाहता है और कैसी कैसी हरकतें होती हैं। तो बात यह है कि बातें करना बड़ा आसान है। जब तक अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, अपनी गलतियां रियलाइज़ नहीं करेंगे, ये सब उम्मा शुम्मा कुछ नहीं होती।
یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور آپ کے یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ دھوکہ کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے سے لے کے ساؤتھ ایشیا کے لوگ کہ پڑھے لکھا مسلمان تھا، اس نے صرف اس قوم کو استعمال کیا ہے۔ میں اس پہ اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں آتا ہوں ایم کیو ایم کی طرف۔ وہ کہا ہے جی مصطفیٰ کمال نے کہ اب ٹیلی فون کی کال پر فیصلے نہیں ہوتے، اب ہم خود فیصلے کرتے ہیں۔ کہ میرے پیارے حضور، آپ کو اور آپ کی جماعت کو سب جانتے ہیں، پہلے اسلام آباد آپ پارا سے فون ڈائریکٹ لندن جاتا تھا، پھر لندن سے کال آتی تھی تو آپ فیصلے کرتے تھے۔ اب وہ لندن کی پکھراٹ ختم کر دی ہے، اب ڈائریکٹ فون اسلام آباد سے کراچی آنے لگا ہے۔ آپ خود کس کے آدمی ہیں سب کو معلوم ہے، آپ کس کے کہنے پر آئے وہ بھی کال پہ ہی آئے نا، کہ اس ایم کیو ایم کے بارے میں جو باتیں ہیں، خالد مقبول صدیقی کے بارے میں آپ جو کہتے تھے، جو آپ نے گھٹیا الزامات لگائے ہیں، وہ لوگ بھولے نہیں ہیں۔ کہے تو ویڈیو میں دکھا دوں تو آپ کو وہ پتہ چل جائے سے آپ کا اختلاف ہے مصطفیٰ کمال صاحب، وہ کس کے کہنے پہ آئے، آپ کس کے کہنے پہ آئے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس جماعت میں کتنے پرسنٹ لوگ اوریجنل ہیں، حقیقی ہیں، ریئل ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب تو شرطیں لگتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہے جو ان کا آدمی نہیں ہے، کوئی ایک، میں نام تو نہیں لوں گا، مجھے ایک بڑی اعلیٰ قسم کی لیڈرشپ میں سے کسی ایک نے بڑے مزے سے، بہت ہی تمکنت اور بڑے تفاخر سے کہا کہ جب باجوہ تھے کہ چیف صاحب مجھ سے بہت ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور دل کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو جناب، آپ لوگوں نے اس قوم کو، اس اردو اسپیکنگ کو کیا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایک نوجوان سنا رہا تھا کہ 2006 میں جب آپ کا پیک تھا، عروج تھا، اور آپ ملک ریاض کی نوکری کیا کرتے تھے، وہ کس کا فرنٹ مین ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تو بتاتا ہے وہ نوجوان کہ طارق روڈ پر مختار کار کے انٹرویوز ہو رہے تھے، آسامی مختار کار کی آسامیاں تھیں سندھ میں 800 نوجوان وہاں جمع تھے، جن میں ایک بڑی اکثریت خواتین کی تھی، جو پجارو لینڈ کروزر سے لے کر برانڈڈ گاڑیوں میں اکثریت آئی تھی، اور اس میں 2 صرف اردو اسپیکنگ تھے۔ ایک وہ نوجوان جو یہ بتا رہا تھا، اور ایک نوجوان حیدرآباد سے آیا تھا۔ تو وہاں ان دونوں نوجوانوں کو بتایا گیا کہ تو آپ لوگ یہاں کیا کرنے ہیں، یہ آپ لوگوں کی پوسٹیں نہیں ہیں اور لینی ہے۔ تو یہ سب تماشا ہو رہا ہے، 80 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے۔ پتہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب کہ اس وقت کون وزیر داخلہ تھا سندھ کا؟ عبدالرؤف صدیقی۔ میں ان سارے صدیقیوں کو جانتا ہوں اور قصے بھی مجھے بہت پتہ ہیں۔ عبدالرؤف صدیقی کے 10 قصے اور سنا سکتا ہوں آپ کو۔ یہ وہ دور تھا جب سندھ پر مکمل آپ کا قبضہ تھا، اور آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیش پر تھے، جن کے کہنے پہ آپ نے 9 مئی کر دیا تھا۔ اور مجھ سے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا 4 دن پہلے 12 مئی سے پہلے، 9 مئی کہہ رہا ہوں، 12 مئی سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھو بہکاوے میں نہ آنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، یہ ایک ویو ہے، اور یہ ویو بھی انہوں نے ہی بنائی ہے، ان کی نچلی قیادت نے بنائی ہے اوپر کی قیادت کو فارغ کرنے کے لیے، تو تم اس کا حصہ نہ بننا۔ تو مجھے جواب دیا تھا کہ ایک طرف کھڑ ہے، ایک طرف کھائی ہے۔ آپ ہمیشہ کے اسٹوج ہیں، ہمیشہ سے، مطلب جب یہ بنائی گئی تو اس کے مقاصد سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں بنائی گئی تھی۔ جیسے حماس ہے نا کہ ہر 2-4 سال کے بعد حملہ کرتی ہے اور تماشا لگتا ہے، فلسطینی بچے مارے جاتے ہیں، بوڑھے مارے جاتے ہیں، جوان مارے جاتے ہیں، اور فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ تو ایسی آپ کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، سننے والے بھی، جاننے والے بھی، اور ان کے لوگ جو خاص کر ان کے ڈائی ہارٹ ہیں، کہ یہ جو کاسموپولیٹن سٹی ہوتے ہیں، یہ نہ مذہبی ہوتے ہیں ذہنی طور پہ بہت، اور نہ یہ قوم پرست ہوتے ہیں، یہ اکنامک
कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इनके बिल्स होते हैं, इन्हें रोज़ देना होता है, उनकी अदायगियाँ करनी होती हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी ये सिर्फ उसके होते हैं जो उनके मफादात के लिए काम करते हैं, जो इनके बच्चों की तालीम, रोज़गार, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। MQM ने आके तहफ़्फ़ुज़ दिया, रोज़गार दिया, तालीम दी, सेहत दी। कोई एक चीज़ बता दें, अगर इसकी डिटेल में चला जाऊं तो एक रूह फरसा कहानी है। गालिब मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि जी उनसे पूछा गया कि जनाब इमरान खान के लोग तो चले गए हैं पिटीशन लेकर उनकी ज़बान बंदी पर, तो आप उनका कहते कि उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो रियासत और सियासत का मामला है। ये उसी रियासत की बात कर रहे हैं जिसका आप लोग हिस्सा हुआ करते थे, अब भी उसी का हिस्सा हैं। चाहे वो रेफरेंस भेजना हो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, तो आप ही के यहाँ से लोग चूज़ किए जाते हैं। तहरीक एतमाद लानी हो तो आप ही के लोग चूज़ किए जाते हैं। हर खेल में आप हुकूमत कायम रखनी हो तो आप काम आते हैं, हुकूमत गिरानी हो तो आप काम आते हैं, कि आपको रखा ही इसलिए गया है। मैं बहुत सी बातें और कर सकता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ ये किया है कि कराची का नौजवान अब कराची में नहीं रहना चाहता। बहुत से लोगों को इल्म में नहीं होगा और बहुत सौ के नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में पासपोर्ट इतनी बड़ी तादाद में बन रहा है कि क्राइसिस पैदा हो गया है। पासपोर्ट का कागज़ ख़त्म हो गया है, इंक ख़त्म हो गई है, उसकी जो एक मखसूस इंक आती है, और प्रेस भी जाम से हो गए हैं। बताने वाले ने बताया कि सिर्फ कराची से रोज़ाना 50,000 पासपोर्ट बनता है, कि उसको ना फेडरल गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है। सूबे में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हर पोस्ट एक मखसूस लॉबी की है, एक मखसूस पार्टी की है, वो बेचते हैं, वो या अपने लोगों को देते हैं वोट के चक्कर में। आपने सिर्फ ये फ़ायदा पहुंचाया कि अंदरून सिंध जो उर्दू स्पीकिंग बड़ी तादाद में रहते थे, एक तो उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस मूव होना पड़ा, और फिर बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर ठहरी। शुक्र है कि अब बहुत बड़ा फ़र्क आया है, अब सिंधी महाजूर आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, शादियां हो रही हैं। पहले तो स्कूलों में भी एक दूसरे के नहीं जाते थे, अब 50-50 का प्रोपोर्शन नज़र आता है, और एक दूसरे की ज़बानें भी सीख ली हैं, एक दूसरे के करीब भी आ गए हैं। शाम की सिटिंग भी एक में सब लोग आपस में बैठे हुए नज़र आते हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कराची को जो दिया वो सबके सामने, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कहना कि जनाब पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, अव्वल तो इंतखाबात हो नहीं रहे हैं, ये आपकी खुश नसीबी है। अगर इंतखाबात हो जाएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा, कि आपको इल्म हो जाएगा कि अगर अव्वल तो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, आपको 3-4 सीटें दी जाएंगी यकीनन, और वो सबको पता चल जाएगा कि जैसे आपको पता चल गया था कि खान साहब को 14 सीटों में से 12 सीटें कराची की छीन के दी गई थी। हमें पता है आपकी सीटें छीनी गई थी, और आप कैसे लेते थे वो भी हमें मालूम है। तो बात यह है कि ये कहना कि जनाब पहले कहीं और से कॉल आती थी, आपकी कॉल वहीं से आती है जहां से आपको हमेशा। मैं आता हूं अपने आखिरी मौजू की तरफ। देखें जनाब, पीपल्स पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट नज़र आती है मुझे, और आम सिंध का रहने वाला, सिंधी स्पेशली, कि मैं पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता 15-20 साल से, 25 साल से बल्कि कहना चाहिए, सिंध की MQM समझता हूँ कि ये कौम प्लस पार्टी है यहाँ, और इससे हट के नहीं है कि, और सिंधी भी अपने मुंह से मानते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे पास चॉइस क्या है, क्योंकि जो पंजाब की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी हो, उनकी प्रायोरिटी में या उनके एजेंडे में सिंध नहीं है, या बलूचिस्तान भी नहीं है, और सिंध में भी और कोई जमात ऐसी नहीं है, तो इसलिए वो भी उस पार्टी को देते हैं। तो कहते हैं कि जनाब अब इसमें लोग बहुत मजबूरी से हैं, कि जो लूट मार है, जो अनमेरिट है, और जो नाइंसाफ़ी है, और जो एक मखसूस लॉबी है, एक ख़ास नज़रियाती, एक ख़ास सोच के लोग, मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे बताने वालों ने बताया कि जी खुर्शीद शाह किसी वक्त भी अब छोड़ सकते हैं, कि एक ख़ास लॉबी के सैयद जो है ना वहाँ प्रिवेल करते हैं। फिर दूसरे
जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उसे पैसे बहुत चाहिए। तो कहते हैं कि ईद के बाद नवाबशाह में एक मीटिंग हुई जहां खुर्शीद शाह थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे और शारजिया मरी थी और एक दो और लोग थे। तो आसिफ जरदारी साहब ने उनसे खुर्शीद शाह से कहा कि तुमने पार्टी के लिए क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने टाइम दिया है, मैंने अपनी डेडिकेशन, अपना पैशन, अपना रोमांस और अपनी स्ट्रगल सारे उन्होंने बताया। उनका कि पैसे वो देते हैं जो ये सब कुछ नहीं दे सकते। बहुत सी बातें बताई जो मैं अभी और नहीं करूंगा। तो कहने वालों ने सिर्फ ये कहा कि मुस्लिम लीग नून सिंध में अब काम करना चाहती है और खुर्शीद शाह को सिंध की सदारत की पेशकश है। मगर कहने वाले ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहीं थोड़ा सा रिलाइट भी कर लिया है और खुर्शीद शाह को 3 सीटें चाहिए अगले इंतखाबात में, अपनी, अपने बेटे की और अपने दामाद की। तो उसमें से 2 तो कहते हैं पक्की हैं, 1 का पता नहीं है अभी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर खुर्शीद शाह के रास्ते अलग हो जाएंगे, जिन्हें पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल के रास्ते, वज़ारत उज़्मा के रास्ते में एक रुकावट समझती है कि राजा अशरफ परवेज़ को स्पीकर बना के फारिग कर दिया, यूसुफ गिलानी को जनाब सेनेट में भेज कर फारिग कर दिया, खुर्शीद शाह सीनियर रह गए हैं। तो इनसे जो मैंने अभी बयान किया कि जो तज़ादात हैं, जो परखाश है, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उन्हें तेज़ी से दीवार से लगाया जा रहा है, नासिर शाह को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, बताने वालों ने यह भी कहा कि एक मौके पर जरदारी साहब ने खुर्शीद शाह से कहा कि तुम तो सिंध के वज़ीर आला बनना चाहते थे तो क्यों नहीं बने? तो खुर्शीद शाह ने कहा कि बीबी ने मेरा नाम दिया था, कभी बीबी मुझे बनाना चाहती थी, बीबी ने मेरा नाम वापस ले लिया था, तो मैं नहीं बना, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो बताने वालों ने आखिरी बात ये बताई कि वाहिद आदमी है खुर्शीद शाह जो आसिफ अली जरदारी को बिल्कुल वो जवाब देता है जो हक और सच की बुनियाद पर होते हैं, और जो उनका व्यू होता है वो खुशामद नहीं करते, इसलिए उनकी कुर्बानियों के दर पर हैं। कुर्बानियाँ क्या, यहाँ मौका नहीं है कि मैं उन लोगों से भी मिला हूँ खुर्शीद शाह जिनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ कर जाया करते थे। मैं उन लोगों से भी मिल लिया हूँ जो ये कहते हैं कि इनकी जेब में 20 रुपए भी नहीं होते थे, आज इनके पास 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और पता नहीं जाने क्या क्या है, और क़यादत को भी ये शिकायत है कि पैसे तो बहुत हैं, देते नहीं हैं। तो बहरहाल ये डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स है और जो पसंद नापसंद की बुनियाद पे खड़ी हुई जमहूरियत है, ये आपको कभी कहीं कुछ नहीं दे सकती और ना देगी, अनलेस अल्लाह के रियासत पीछे हटे, आम आदमी को काम करने दे, आम आदमी को आगे बढ़ने दे, मेरिट पर वोट हो और मेरिट पर जमातें बने, मिडिल क्लास को आगे लाया जाए। लेकिन ये आखिरी बात ये करूँगा कि पंजाब में 15 लाख असातिज़ा बेरोज़गार होने जा रहे हैं कि निजी शोबे के हवाले स्कूलों को किया जा रहा है, उसमें जो बंदरबाट होने जा रही है, जो होने की तलात है, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि 15 लाख लोग बर्बाद होने जा रहे हैं, 15 लाख ख़ानदान बर्बाद होने जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में तो तनख्वाह 15,000, 10,000, 6,000 रुपये तक भी है मास्टर लड़के लड़कियों के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और जो 10-10 हज़ार और 20-20 हज़ार फीस वसूल करते हैं उनकी तनख्वाह भी 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो जो BA B.Ed करके या MA M.Ed करके 1,70,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, अगर वो 20,000 पे आ जाएंगे, उनका पेंशन प्लान भी ख़त्म हो जाएगा, तो अंदाज़ा है कि क्या हाहाकार इस मुल्क में पड़ने जा रही है और क्या नक्शा बनता जा रहा है, कैसे इंतजार बढ़ेगा कि ये बम किसी वक्त भी कहीं भी फट सकता है अब। मगर रियासत के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो यही काम करे, मगर ये काम करने से पहले गवर्नेंस बड़ी ज़रूरी है, जो मैंने कल भी कहा था, जिसका इस यहाँ कोई वजूद नहीं है।
آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو کی۔ اللہ حافظ۔